Good morning student. Today I am going to teach you 5th standard geography subject and lesson number 2, the imaginary lines, latitude and longitude. As we know that the lesson heading us given that imaginary lines. Imaginary lines यानी क्या, जो चीज़ें हम लोग imagine करके सोचते हैं, just kind of them in our earth so many imagined lines are drawn which is given a name are latitude and longitude. यानी जो हमारी अर्थ के ऊपर एज ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए गए हैं जो हम लोगों को समझने के लिए है, ताकि हम लोग किसी प्लेस को लोकेट कर सके या फिर वो कौन से जोन में सिचुएटेड है ये हमको समझ में आ सके, इसलिए हम लोगों ने अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग विच इज गिवन अ नेम अ लॉन्गिट्यूड एंड अ लैटिट्यूड. नाउ लेट्स मूव टू आवर लेसन. We are aware that the globe is a small model of the earth. The shape of the earth is like an orange. It is a sphere which is slightly flattened at the top and at the bottom. As we know that our this globe is a model of a earth. Model of earth. Why? Because of this model of earth, because of from where we stand these places, or whenever we have to be stand any places are there, at that time we can't see throughout earth. For that understanding or for that the study of the earth, we have to be make a one model of the earth. After that you all are looking at one orange. Have you know that the orange are there? Orange is also a circle, but whenever we make this orange or whenever make this circle, at that time we have to make this portion slightly flattened. Slightly flattened, it means that this portion they have to be move a down portion, this portion move toward the up portion are there. It means यहाँ पे ये जो कुछ भी portion हम लोगों ने slightly flattened किया है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे झुका हुआ जो दिखाई दे रहा है, just kind of then earth and the model of the globe is also look like a slightly flattened are there in a topmost also and the bottommost also. After when we look at the globe, we see a number of countries and important place mark on it. After that, whenever we study about throughout the earth map or the world map or the globe, at that time we see that some kind of the countries and some kind of the important places mark on it. यानी अर्थ की हम लोग जब स्टडी करते हैं तब जो कुछ भी ग्लोब से हम लोग स्टडी करते हैं या फिर किसी मैप से अगर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज या इंपॉर्टेंट कंट्रीज या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस मार्क किए होते हैं. क्यों? नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस, say Mumbai, how will you do it? It is not easy to look for a place in a globe. For example, in your textbook given that if we have to study about this globe and at that time somebody told you show me a Mumbai on that globe, यानी आप लोगों को किसी ने अगर एग्जाम्पल दिया कि आपके पास अगर ये ग्लोब है तो इस ग्लोब में आपको मुंबई को दिखाना है. इट इज़ ईजी वे टू फाइंड आउट द मुंबई, यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है क्या मुंबई यहाँ पे फाइंड आउट करना? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट द Mumbai because of in that globe only some continent, 7 continent, only the 5 ocean. After that the countries they have to be shown, but not to show a throughout city in the world. That's why it is not easy to find out the Mumbai place. Then what happened also, if the place is very small, it may be not be marked on the globe at all. So what can we do to find it? After that, in that globe we see a different kinds of the countries name, ocean or the rivers name. But after that, in our earth or in our universe or the world, so many countries we have. In that countries we have so many villages, so many cities, so many different kind of the heritage places are there. But can we find out to this the help of model of the earth? Can we find out each and every things are there? No. Then at that time what we do? So here is given that in this chapter we will learn about certain line which are drawn on maps or globe to locate a place on the surface of the earth or give direction to a people. For that understanding, whenever we have to be found a small village, small city or the small different kinds of the state are there, at that time for understanding these places or for searching these places, for our understanding we can draw some line of the
मैप। इट मीन्स दैट हम लोगों ने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कुछ भी हम लोगों को सिटी फाउंड करनी है, विलेज फाउंड करने हैं, या फिर कौन सा प्लेस कौन से लोकेशन में है, ये अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग में भी आना चाहिए। यानी उसको फाइंड करना, यानी ऐसा नहीं होना है हमारे साथ कि नहीं अगर हम लोगों को यहाँ से हैदराबाद जाना है तो यहाँ पे बैठकर हम लोग पहले गाड़ी से निकलेंगे और फिर रास्ते में पूछेंगे कि भाई हैदराबाद का रास्ता कहाँ है, इसका रास्ता कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ है। ऐसे पूछते पूछते अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर द सेवियर आवर टाइम वी कैन फर्स्टली फाइंड आउट द इन विच प्लेसेस इन विच पोर्शन दे हैव टू बी लोकेटेड। यानी यहाँ से बैठकर हम लोगों को ये फाउंड आउट करना है कि हैदराबाद कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डायरेक्शन में है, कौन सी जगह पर है, या फिर नियरली वहाँ पे क्या सिचुएटेड है जहाँ कि हम लोग वहाँ पे पहुँच सके। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने हमारे अर्थ के ऊपर कुछ सर्टन लाइंस ड्रॉ किए हैं। सर्टन लाइंस इट मीन्स दैट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए हैं। इमेजिनरी इट मीन जस्ट लाइक ये अगर हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए हैं। ऐसे इमेजिनरी लाइंस हमारे यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किए। ये रियल में हमारे अर्थ के ऊपर है क्या? नहीं, दिस इज नॉट रियली एग्जिस्टेड इन आवर अर्थ। ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी ड्रॉ सम काइंड ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस फॉर लोकेटिंग अ प्लेसेस टू अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स। अंडरस्टूड? नाउ इन दैट लेसन फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ एन एटलस। यूज ऑफ एन एटलस यानी कोई भी मैप अगर हम लोगों को स्टडी करना है तो उसके पहले हम लोगों को एटलास के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम लोग समर वैकेशन के बाद जैसे हम लोग बुक्स खरीदते हैं, मम्मी पापा बुक्स लेके आते हैं और हम लोग जब बुक्स देखते हैं, फर्स्टली हम लोग हर एक बुक्स का पहला जो पोर्शन होता है जस्ट लाइक अ कंटेंट्स, ये कंटेंट्स हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये कंटेंट्स हम लोग पहले देखते हैं कि नहीं कौन से पेज पे कौन सा लेसन है, लेसन के नाम पढ़ेंगे, उसके पेज नंबर देखेंगे, जो पेज नंबर दिया है उसी पेज नंबर को देखकर हम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं। व्हाई यू हैव टू ओपन दिस लाइक दैट? बिकॉज ऑफ you have a content in your every book just like them for studying of a map. At that time some atlas are given. Atlas given it means that atlas is just like a content, यानी आपके हर एक टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे जो कुछ भी कंटेंट दिए हुए होते, सीक्वेंस वाइज नंबर से लेसन दिए हुए होते, लेसन का नाम लिखा हुआ होता है और उसके सामने उसका पेज नंबर दिया होता है। यानी आप उस पेज नंबर उस कंटेंट का यूज करके आप कोई भी लेसन कभी भी ओपन कर सकते हो। आपको रिस्ट्रिक्शन होता है क्या कि नहीं आपको पहले सबसे पहले पहला ही पेज ओपन करना है, लास्ट वाला जब टीचर सिखाएंगी तभी ओपन करना है? नहीं, हम लोग जैसे ही नए बुक्स आते हैं वैसे हम लोग क्या करते हैं कि कौन से लेसन दिए ये देखने के लिए हम लोग डायरेक्टली वो पेज ओपन कर सकते हैं। नाउ सी दैट यू कैन टेक आउट योर एटलसेस and flip through their pages. Towards the end you will come across a section called the index. What has given here? Whenever we have to see our atlases or see our textbook content, at that time we flip our pages starting to the end. यानी हम लोग जैसे ही हम लोगों को बुक्स मिलते और बुक्स में जो एटलास या फिर जो कुछ भी कंटेंट्स दिया होता है वो कंटेंट्स देखने के बाद हम लोग फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पेजेस हम लोग फ्लिप करते हैं ताकि वो जो कुछ भी पेजेस में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी पिक्चर है वो हम लोगों को दिखाई दे या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हो सके। फॉर दैट पर्पजेस अगेन यू हैव टू बी यूज फॉर दैट पर्पजेस फॉर द फ्लिपिंग द पेजेस और अंडरस्टैंडिंग विच लेसन इन विच पेजेस आर गिवन एट दैट टाइम विच इज द कंटेक्स्ट आर गिवन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को हमारे स्कूल में हम लोग जो क्लास टेस्ट कॉपी बनाते तो हम लोगों को रूल है कि नहीं स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है। तो हम इंडेक्स बनाते समय क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं और जो क्लास टेस्ट हुई है वो लिखते हैं ताकि अगर वो डेट वाइज या फिर पेज वाइज भी अगर आपकी कॉपी के पेजेस आप ओपन करते हो तो वहाँ आप डायरेक्टली वो पेज ओपन कर सको। इट मीन्स दैट फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग whenever we have to open any page number with the given context that is content are there, that is called the index. Now an index
shows you a names of places marked on the different map of the atlas. now we study about our map. अब मैप की अगर हम लोगों को स्टडी करनी है तो मैप की स्टडी करने के लिए एटलास दिए हुए होते हैं, एंड फॉर दैट एटलासेस हियर इज गिवन अ वन इंडेक्स, यानी मैप के नीचे एक इंडेक्स दिया होता है। ये आपका मैप है, यहाँ पे एक इंडेक्स दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है? इंडेक्स। With the help of this index, we have to study this map. For example, if that is a Nagpur map are there. This is a Nagpur map. Okay, and now here is given that the firstly the bus station. After that, the second is the railway station. Then after here is given the fort. Fourth is given that the temple. Okay, and here is given a one sign. अब हम लोग नागपुर के मैप के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है? एक इंडेक्स दिया है। अगर हम लोग ये स्टडी करते हैं विदाउट इंडेक्स, कैन यू फाइंड आउट एवरीथिंग आर देयर? नो, क्योंकि नागपुर सिटी में सिर्फ नागपुर एक ही है क्या? नहीं, छोटे छोटे विलेजेस है, छोटे छोटे जो हमारे ग्रुप सोसाइटीज़ है, नगर है, वो सब कुछ आते हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। छोटे विलेजेस है, सिटी है, प्रॉपर जो कुछ भी फेमस है वो सभी आता है। तो अगर हम आप लोगों को कोई अगर बोले कि नहीं नागपुर का रेलवे स्टेशन कहाँ पे, ये फाइंड आउट करके दो। फॉर दैट पर्पज दिस यू हैव टू यूज दिस इंडेक्स। की इंडेक्स में देखोगे आप लोग कि रेलवे स्टेशन के लिए क्या साइन दिया है या फिर कौन सा नाम दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेलवे स्टेशन इन नागपुर सिटी, और अदरवाइज इफ एनीबडी आस्क्स यू फाइंड आउट द सम ऑफ द टेम्पल विच इज आर इन अ सिचुएटेड इन अ नागपुर। सो आप लोग टेम्पल को फाइंड आउट करते समय आप लोग यहाँ पे टेम्पल का नाम पढ़ोगे क्या कि यहाँ पे टेम्पल कहाँ है, टेम्पल कहाँ पे है, टेम्पल कहाँ पे है, ऐसे फाउंड आउट करोगे क्या? नहीं। इंडेक्स में जो कुछ भी टेम्पल के लिए जो साइन यूज किया है वो यूज करके आप लोग मैप में यहाँ पे इजीली टेम्पल फाइंड आउट कर सकते हो। यानी सिर्फ ये नागपुर सिटी का मैंने मैप दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये नागपुर सिटी के लिए ही है, बट इसका यूज हम लोग हमारे स्टेट का जो मैप है वो स्टडी करने के लिए, आफ्टर दैट हमारे इंडिया कंट्री का मैप है, उसके बाद जो वर्ल्ड का मैप होता है उसमें भी अगर ये इंडेक्स हम लोग जो इंडेक्स तैयार करते हैं उस इंडेक्स के थ्रू ही हम लोग मैप की स्टडी कर सकते हैं। इट इज वेरी इजीली टू फाइंड आउट द एनी प्लेसेस और एनी फोर्ट, एनी टेम्पल which is given on that map. After what was given that the names are listed in alphabetical order with certain numbers written alongside. These numbers indicate the location of a particular place and the have north and south S or east E, W, west written next to them. Now we study about the geographical atlases. Whenever we study about the geographical atlases, at that time some new things are there. यानी हम लोग जब कभी भी एटलास के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो एटलास जब तैयार होता है they are formed as a alphabetical order. Now we have to study about the atlas. As I given an example, just like a map of the index, same here in a index some if given a lots of information according to the alphabetical order and some kind of the directions are there. At that time we can easily find out the throughout countries or the throughout the world's information. For example, I am draw here a one kind of the atlas, that is the atlas are there. Okay, now in that atlas I am written here name, then after this country or sorry this village or this city in which country or which state found. After that here is given a latitude and a longitude. It means that in which direction they are found are there. Okay, so I am here writing one name अमरावती. अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अमरावती एक नेम लिखा है. अब नेम क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने ए में महाराष्ट्र से पहले लिया है अमरावती. ठीक है, अब ये कौन से कंट्री में आता है तो आप वहाँ पे इंडिया कंट्री भी लिख सकते हो. अगर रीजन पूछा है तो फिर आप वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट
ये भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पे दिया हुआ था इंडिया कंट्री में महाराष्ट्र स्टेट में अमरावती फाउंड होता है। अब ये अमरावती जो इंडिया कंट्री और महाराष्ट्र स्टेट में फाउंड हो रहा है, तो वो कहीं पे भी फाउंड होगा क्या, महाराष्ट्र या फिर इंडिया कंट्री में, वो नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर अगर हम लोगों को सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं इंडिया कंट्री और महाराष्ट्र कंट्री में अमरावती कहीं पे भी फाउंड होता है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड दैट लाइक नो। सो फॉर दैट इंडिकेटिंग अ स्पेशल डायरेक्शन अगेन गिवन अ some kind of the alphabet are there, which is before that some number are also given, some number are also given, यानी ये दो चीजें देने के बाद इसके बाद में कुछ नंबर दिए होते हैं और कुछ इनिशियल अल्फ़ाबेट दिए होते हैं। यानी ये नंबर जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में इस डिग्री में 23 नॉर्थ डायरेक्शन डिग्री में ही हम लोगों को, या फिर इस डायरेक्शन 86 डिग्री में ही हम लोगों को अमरावती फाउंड होता है। अंडरस्टूड? दिस एन और ई इंडिकेटिंग एन, इट मीन्स दैट द नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ इट एस इंडिकेटिंग अ साउथ डायरेक्शन, east indicating east direction and W indicating west direction। यानी ये तीनों जो है N, S, E, W ये क्या शो करते हैं, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एज अ अमरावती, यानी अमरावती जैसे ऐसे पूरे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पूरे नेम लिखे हुए होते हैं, उनके सामने वो कौन से कंट्री से है, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, दिस ऑल्सो विल बी शो हियर। आफ्टर दैट उनके वहाँ पे डिग्री एंड देन कौन से डायरेक्शन में है ये भी दिया जाता है। यानी इस एटलास का यूज़ करके हम लोग मैप में या फिर पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड मैप में हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन सा विलेज या फिर कौन सी कंट्री कौन से कंटिनेंट में है, कौन से कंट्री में है, कौन से स्टेट में है, कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है, कौन से दो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डायरेक्शन के बिटवीन में, ये सभी चीज़ें हम लोग फाउंड कर सकते हैं। देन आफ्टर द आवर सेकंड पॉइंट इज दैट द लोकेटिंग प्लेसेस। लोकेटिंग प्लेसेस इट मीन्स दैट हर एक जो कुछ भी प्लेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो सभी प्लेस सभी डायरेक्शन में लोकेटेड होते हैं क्या? नहीं। एज वी नो दैट इन इंडिया द नॉर्थ डायरेक्शन हिमालयाज आर लोकेटिंग, इन अ साउथ डायरेक्शन वी हैव अ इंडियन ओशन आर देयर, इट मीन्स दैट इन अ डिफरेंट प्लेसेस आर लोकेटेड इन अ डिफरेंट पोर्शन। ओके, सो द आवर सेकंड पॉइंट इज दैट लोकेटिंग प्लेसेस। See that what was given? When we look at the globe, we see a number of lines on it. These lines are imaginary lines which do not actually exist on the surface of the earth. I already told you, whenever we study about this earth, at that time we have to draw some kind of the इमेजिनरी लाइंस। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम लोग जो कुछ भी अर्थ की स्टडी करते हैं, किसी भी प्लेस की स्टडी करने के लिए, तो हम लोगों ने अर्थ के ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो लाइंस है ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये इमेजिनरी लाइंस है जो हमको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये रियल में हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ड्रॉ है क्या? नहीं। दैट इज ओनली अ इमेजिनरी लाइंस विच इज मेड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारे नॉलेज के लिए, हमको ये अर्थ की स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो सके, इसलिए हम लोगों ने ये लाइंस ड्रॉ किए हैं। दिस इज नॉट रियली एग्जिस्टेड ऑन आवर सरफेस। ये हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर रियल में ड्रॉ नहीं किए गए हैं। वी हैव टू बी मेड दिस इमेजिनरी लाइंस, अंडरस्टूड। देन आफ्टर वी ड्रॉ सच लाइन ऑन द ग्लोब टू मेक इट ईजियर टू लोकेट अ प्लेस। दे आर टू काइंड्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आफ्टर ये जो कुछ भी लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, फॉर व्हाट पर्पज वी हैव टू बी अ ड्रॉ, यानी ये हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं। बट फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द टू easy to locate any places। किस चीज़ के लिए हम लोगों ने, कौन से पर्पस के लिए लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं कि हम लोग इजीली कौन से भी प्लेस, जो कुछ भी प्लेस कौन से पोर्शन में लोकेटेड है वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोगों ने ये लाइंस ड्रॉ किए हैं। अब ये लाइंस ड्रॉ किए, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए, एक्सेप्ट इट, बट वी हैव सम नेम फॉर दैट लाइन। हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हर बार इस इमेजिनरी लाइंस के ऊपर ये प्लेस लोकेट है, ये इस इमेजिनरी लाइंस के ऊपर ये प्लेस लोकेट है, ऊपर वाले लाइन के ऊपर ये प्लेस लोकेट है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या? नो।
No. For that understanding we can make lines. Okay, but we have some name for understanding this line. Yes or no? So for that we have to given a name, latitude and the longitude. What we have to give the name of these imaginary lines? First is given that the latitude and secondly given that the longitude. Okay, now we already know that the axis of the earth is imaginary line passing through its center. The earth constantly rotates on its axis. The two ends of the axis of the earth are called the poles. Now before that, going to this imaginary line, we know that our earth just like a sphere shape are there and they have to rotate ourselves, यानी हमारी जो अर्थ है वो स्पीयर शेप में है, बट साथ ही में वो खुद में गोल घूमती है, खुद में गोल घूमती है, सबको पता है ये. इट मीन्स दैट whenever they completed the one round ourselves, whenever they have to be complete a one rotation ourselves, for that rotation they have to use a one line, they have to use a one path, that is a axis. यानी अर्थ, जब हमारी अर्थ गोल घूमती है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जब गोल घूमती है तो वो एक्सिस से गोल घूमती है, दैट इज अ एक्सिस. अब ये एक्सिस यानी क्या होता है, इसका एग्जांपल है एक्सिस. हम लोग कभी कभी हमारे मम्मी के जो बेंगल्स होते हैं, बेंगल्स पता है सबको, बेंगल्स जो होते हैं वो हम लोग राउंड शेप में, राउंड पे ऐसे गोल घुमाते हैं. वो गोल घुमाते समय आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा, जब वो फास्टली गोल घूमती है तो बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, फेंट स्टैंडिंग लाइन दिखाई देती है, एंड आफ्टर दैट दे टोटली स्टॉप. यानी जब तक वो गोल घूमती है तब तक वो हम लोगों को स्टैंडिंग लाइन दिखाई देती है. अब वो स्टैंडिंग लाइन आपके बेंगल्स, मम्मी के बेंगल्स में पहले से है क्या? नहीं, बट वो जिस तरीके से मूव होती है एट दैट टाइम द रिफ्लेक्शन विल बी शो दैट जस्ट लाइक अ वाइट. इट मीन्स दैट वो इमेजिनरी एक लाइन वहाँ पे तैयार हो रही है. विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन दे हैव टू बी रोटेट देयर सेल्फ. आप लोग सिर्फ गोल घुमाने का काम करते हो, लेकिन वो जब गोल घूमती है तो वो एक्सिस, वो एक एक्सिस तैयार होता है और उस एक्सिस से वो बेंगल्स भी बहुत, जब तक उसको गोल घूमना है तब तक वो गोल घूमती है. सेम काइंड ऑफ जब हमारी अर्थ भी रोटेट होती है खुद में, तो वो रोटेट होने के लिए एक एक्सिस, ये लाइन तैयार होती है इमेजिनरी, दैट इज कॉल्ड अ एक्सिस. Understood everybody? So we see that whenever this axis line will be end with the 2 point, यानी ये जो एक्सिस इमेजिनरी लाइन तैयार हो रही है जो 2 पॉइंट में, 2 जगह पर अगर एंड होती है, दिस लाइन विल बी इज कॉल्ड अ पोल. ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट दिस लाइन विल बी एंड विद द दिस पॉइंट, दीज आर सिचुएटेड और दीज आर लोकेटेड इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, एंड दिस पोर्शन सिचुएटेड और द लोकेटेड इन अ साउथ डायरेक्शन. यानी ये जो इमेजिनरी लाइन, एक्सिस लाइन हम लोगों ने देखी थी, ये 2 पॉइंट पे एंड हो रही है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में हो रही है? अपर साइड में, टॉप पोर्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में हो रही है, और साउथ जो पोर्शन है, बॉटम पोर्शन, वहां पे साउथ डायरेक्शन में हो रही है. इट मीन्स दैट दिस पोल नेम हैव अ नॉर्थ पोल. यानी जहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन में एंड होता है वो क्या है? नॉर्थ पोल है, और ये एक्सिस लाइन जिस साउथ डायरेक्शन में एंड होता है वो क्या है? साउथ पोल है. इट मीन्स दैट व्हेनेवर द अर्थ रोटेट आर अवर शेप, यानी अर्थ हमारी जब गोल घूमती है तब वो गोल घूमते समय जो एक इमेजिनरी लाइन तैयार होती है स्टैंडिंग, विच इज कॉल्ड द एक्सिस. ये इस एक्सिस की वजह से हमारी अर्थ रोटेट होती है. वो रोटेट होते समय ये एक्सिस लाइन टॉप मोस्ट में और बॉटम मोस्ट में एंड होती है. तो ये एंड होते समय जो पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं, यानी ये पॉइंट जो तैयार हो रहे वो क्या है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. यानी ये स्टैंडिंग लाइन में जो पॉइंट होते हैं वो पहले हम लोग उसको क्या बोला था? हम लोगों ने सिर्फ पोल बोला था, बट ये पोल ऐसे ही रहेंगे क्या? ये कौन से तो भी डायरेक्शन में सिचुएट है, जैसे कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएट है और ये वाला पोर्शन साउथ पोल में सिचुएटेड है. इट मीन्स दैट दिस पोर्शन हैव अ नॉर्थ पोल. ये इस पोर्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? नॉर्थ पोल नाम दिया है, और ये वाला पॉइंट जो है साउथ डायरेक्शन में उसको हमने क्या नाम दिया है? साउथ पोल नाम दिया है. ठीक है, इट मीन्स दैट व्हेनेवर द अर्थ आर रोटेटेड, यानी अर्थ जब भी गोल घूमती है तब वो अपने खुद के एक्सिस में गोल घूमती है, और एक्सिस जहाँ पे टॉप में और बॉटम में स्टॉप होते हैं वहाँ पे हम लोग उसको पोल बोलते हैं.
जो टॉप मोस्ट पोल होता है उसको हम लोगों ने नॉर्थ पोल बोला है, और जो बॉटम पोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोगों ने साउथ पोल बोला है, ठीक है। आई होप यू understood this use of an atlas and the locating places, which is including a north pole and a south pole are there, and next portion longitude and latitude we will see in a next video. Thank you.